ناظرین السلام علیکم۔ 4 انتظامیہ اور اسٹاف کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی اور تقوی کو قبول فرمائیں۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی طرف۔ شہر میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات، امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں۔ عید الاضحیٰ ایثار و قربانی کی عظیم مثال، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور تقوی اختیار کرنے مسلمانوں کو علماء اور ائمہ کی تلقین۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا جوش و خروش، مسلمانوں نے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے فریضہ قربانی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دلی میں ارون جیٹلی سے ہوئی ملاقات، جی ایس ٹی کے ٹیکسز میں کمی کے بارے میں ہوا تبادلہ خیال۔ مرکزی کابینہ میں اتوار کو توسیع، صدر بی جے پی امت شاہ کی خیمگاہ پر زبردست سرگرمیاں، اپوزیشن نے کابینہ کی تبدیلی پر اٹھائے سوال۔ اور مناسک حج کے چوتھے روز حجاج کرام مینا میں، تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں فرزندان توحید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ عیدگاہ میرالم میں سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ علماء اور ائمہ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور جذبہ ایثار و قربانی کو پیدا کرنے کی تلقین کی۔ پولیس کی طرف سے شہر میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ حالت رویاں میں جب دیکھا خلیل اللہ نے، امتحاناً حکم قربانی دیا اللہ نے۔ بولے ابراہیم انی اذبحو کا ماذا ترا، بولے اسماعیل کیجئے جو ہے حکم خدا۔ باپ بیٹے گھر سے نکلے امتحان کے واسطے، سر بکف جاتے ہیں رب دو جہاں کے واسطے۔ دیکھو دیکھو آ گیا میدان مذبح آ گیا، ہاں و دیکھو باپ نے بیٹے کو قرباں کر دیا۔ باپ بیٹے کی حکایت قابل تقلید ہے، سنت ابراہیم کیا ہے، مومنوں کی عید ہے۔ عیدگاہ میرالم میں نماز عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ امام و خطیب مکہ مسجد مولانا محمد رضوان قریشی نے نماز عید کی امامت کی۔ مولانا محمد سیف اللہ نے عیدگاہ میرالم میں اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن کی حفاظت شریعت اسلامیہ کی حفاظت ہے۔ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر فیصلہ علماء کے پاس ہوگا۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے فیشن سے گریز کرنے کی بھی تلقین کی۔ مولانا نے کہا کہ اسلامی تعلیمات پر سختی سے ہمیں عمل کرنا چاہیے اور تقوی کو اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان دکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اصل واقعہ کیا ہے؟ آج کل پانی میں گندگی مل جاتی ہے، دیکھا آپ نے لائن مل جاتی ہے، ڈرینیج کے پانی خراب ہو جا رہا ہے، تو کیا کرتے ہم واٹر پیوریفائر لے کے ایکوا گارڈ وغیرہ لگا دیے، کہیں کو لگائے تاکہ پانی میں ایسے گندگی نکل جائے اور صاف پانی ہمارے پاس آ جائے۔ مودی جی تھینک یو، شکریہ آپ کا، آپ نے جو طرح میں سلاسا کا لایا یہ ہمارے لیے ایکوا گارڈ کی طرح تھے، جو کچرا 1% تھا نکل گیا، ہمارے لیے کچرا کر آیا تھا۔ یہ جو آپ کے ساتھ دے رہے ہیں طرح میں سلاسا کی فیور میں، وہ 1% کچرا مسلمانوں کی صفوں میں ڈر آیا تھا، آپ کے فیصلے کی وجہ سے وہ کچرا نکل گیا اور 99% مسلمان شریعت کے مطابق
चलने पे तैयार है, आप कितने भी कानून मान लो, कुछ भी कर ले साहब। ये कानून इलाही है क्या? इस्लामी कानून है क्या? बताइए आप। कुरान के सिवा कुछ है? कुरान के सिवा कुछ नहीं है। अब एक चीज ज़हन में रख लिया, अल्लाह ताला ने कहा मैं इसको नाजिल किया हूं, मैं ही इसकी 38 बरस हो गए। बताइए कहीं जबर की जगह जेब या जेब की जगह पेज की जगह तस्दीक की जगह जख्म आई, एक नुक्ता इधर से उधर हुआ, पेज की जगह जेब कर दिया गया। तादाद आयत छोड़ो, रुकू की तादाद छोड़ो, कुरान के सूरतों की तादाद छोड़ो, सबर से 1400 बरस में कोई इधर उधर नहीं कर सका। कौन जो करने की कोशिश किया, क्या हुआ? इरादतुल्लाह क्या है? इनकी हिफाजत करना है, कुरान की हिफाजत करना है। कुरान की हिफाजत शरीयत इस्लामिया की हिफाजत, शरीयत इस्लामिया की हिफाजत है। कुरान के शब्द से नहीं बदल सके तो फिर आप क्या कर लेंगे? कितने भी कानून बना दो, आप मुसलमान अगर हैं, आप सच्चे मुसलमान, आशिक रसूल हैं, खुदा रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो आज इस मजलिस में वादा करो और ये बात हर एक तक पहुंचाओ कि हमारा हर फैसला उलमा के पास होगा। नहीं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ला हौला वला कुव्वता बिल्ला बिल्ला ज़बानी जमा कर चला, जिंदगी में लाओ। वो यहूदियों का हेयर स्टाइल है, वो जो हमारी बहनों के सीने पे वगैरह पे हाथ रखता है, उसको हम सर पे बिठा रहे हैं और उलमा मशाइख कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अल्लाह और उसका रसूल हो, और हम माँ बाप ये कोशिश करें यहूदी हमारे सर पर मुसल्लत रहे। वादा करो कि आज के बाद से वो हेयर स्टाइल नहीं रहेगा। यहाँ से जाने के बाद पहले वो काटोगे अगर तुम में वीर ईमानी है तो, वरना बेहया है तो एक बेहया बोले बेहया, ये मैया बोला, इनका कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे लालच आते रहेंगी, क्या खाना क्या पीना अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी चली तो अल्लाह के रसूल की तरफ लौट आओ, एक डर पैदा करो, सारी कौम थर्राएगी। अगर एक डर छोड़ दिए, अल्लाह से डरना छोड़ दिए, अल्लाह का डर छोड़ दिए, अल्लाह का घर छोड़ दिए, डर डर के हो जाओगे, भीख मांगोगे, तरस खाने के लिए कहोगे हम पे रहम करो। क्या हो रहा है रोहंगिया में, बर्मा में क्या हो रहा है? क्योंकि हमने खुदा व रसूल को छोड़ा। अल्लाह ने बोला तुम मेरे को भूले जाओ, मैं तुम्हारे को भूलता हूँ। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने ईदगाह मीरालम पर फज़ाइल ईद उल अज़हा बयान करते हुए ईद के मौके पर गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखने की तलकीन की। मौलाना ने सरपरस्तों से मुखातिब होते हुए बच्चों को बेरा रवी से परहेज करने और इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करने के लिए ताकीद का मशवरा दिया। मुल्क के मौजूदा हालात और 3 तलाक के मसले पर मौलाना ने कहा कि सिर्फ मुट्ठी भर अफराद हुकूमत के साथ मिलकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक हो जाएं तो दूसरों के आगे सर झुकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखिए, आप नमाज अदा करेंगे, अल्लाह के सामने जो खुजू के साथ खड़े अल्लाहु अकबर कहकर अपनी तमाम दुनिया से अपने हाथ उठा लेंगे और अल्लाह को कहेंगे कि मौला मैं आपके दरबार में आ गया, अब जो मेरे बारे में आप फैसला करना है करिए। दुनिया के फैसले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, आपका फैसला ही मेरे लिए मायने रखता है। सिर्फ कुर्बानी देंगे। मगर उनका अफसोस हो रहा, कल एक प्रोग्राम सुनने का इरादा मेरे क्या कुर्बानी वो लोग नहीं दे रहे? क्या कुर्बानी का तरीका इनको नहीं मालूम? जो कुर्बानी का हुक्म है, जो कुर्बानी की नीयत किया हुआ है, वो एक तुम हिज्जा से लेकर 10 हिज्जा तक, यानी कुर्बानी करने तक वो ना अपनी जुल्फे कटाए और ना अपने नाखून काटे। वजह क्या है कि मालूम, अल्लाह पे मेहरबान है, अल्लाह पर करम करीम है,
اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے امتیوں تم حج کو تو نہیں جا سکے لیکن ان کے تھوڑے سے انداز تم بھی اختیار کرو، میں تم لوگوں کو ان کے برابر ثواب کو دے سکتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا ماننے والوں اپنے ناخن مت کاٹو، اپنے بال مت کاٹو، اپنی داڑھی مت کاٹو۔ اب تو داڑیاں کاٹنے کا تو سلسلہ ایسا چلا دیکھ کے کوئی کہہ نہ سکتا جانی بیگم ہوں یا جانی۔ بالا تو ایسے سے بگڑے نوجوان اوپر سے پانی بھی ڈال رہے ہیں، ناچو چھڑا لو بابا، اب اس بات سے چھڑا لو۔ ایک نئی بات معلوم دینا چاہ رہا ہوں، جوڑے کی رقم دینے والے کا ہوشیار ہو جاؤ۔ عیدگاہ میرالم کے پاس پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس کی طرف سے والنٹیئرز کیمپ بھی عیدگاہ میں قائم کیا گیا تھا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے عیدگاہ میرالم میں نماز عید ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دی۔ عیدگاہ میرالم میں آج نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ میں اس موقع پر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو عید اضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید ہمارے لیے ایک تاریخی عید ہے۔ اس عید میں ایثار و قربانی اور صبر کی تعلیم دی گئی۔ مسلمانوں کے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے جس میں ایثار و قربانی اور صبر کی تعلیم دی گئی، اور آنے والا نئے سال کا مہینہ ہمارا محرم کا ہے جس میں اللہ کی راہ میں امام علی مقام کی شہادت، جو انبیاء علیہ السلام کی جو قربانیاں راہ میں روکی گئی تھی اس کی تکمیل ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور جب وقت پڑے تو اسلام کی راہ میں اپنی زندگی کے نذرانے پیش کرے، سنت ابراہیمی پر عمل کرے، صبر و تحمل سے کام لے، اور شہادت عظمیٰ کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان اسلام کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور یقیناً اسی میں مسلمانوں کا ایمان کامل کی دلیل ہے۔ میں آپ کے چینلوں کے ذریعے تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا، امن کا، کامیابی کا، ترقی کا، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی اور فتح نصرت عطا کرے۔ نقیب ملت، حبیب ملت کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ان کی عمر دراز کرے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا کرے، مخالفین مجلس کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے یا پھر ان کو انجام تک پہنچائے۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے عیدگاہ میرالم میں پولیس انتظامات کی راست نگرانی کی۔ کمشنر پولیس اور دوسرے پولیس عہدیداروں نے نماز عید کے بعد بچوں میں چاکلیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ کمشنر پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کے تعاون سے عید و تہوار کا پرامن طور پر انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بقرعید فیسٹیول اوکیشن پہ پورا حیدرآباد میں مسلمان بھائیوں کو شبھ کامنائیں حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے، میری طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ سائملٹینیسلی گنیش نمجن کارکرم بھی چل رہے ہیں۔ یہ گنیش اور بقرعید کے لیے پچھلے ایک مہینے سے ہر ایک لوکیلٹی پبلک سے، کمیونٹی سے، ریلیجیس لیڈر سے، ایلڈر سے بات کر کے، میٹنگز کر کے، ان سے کوآرڈینیشن کر کے آج یہ پورا فیسٹیول ہر ایک جگہ میں حیدرآباد سٹی میں ہر ایک ایریا میں یہ پریئرز پیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ارینجمنٹس کیا ہے بہت اچھی طرح چلے گئے۔ آج یہ قربانی دینے کے بعد ہر ایک ایریا میں سینیٹیشن اچھی طرح رکھنے کے لیے، سیفٹی اور سیکیورٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے GHMC کی طرف سے، حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے یہ پورا بیگز ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم کچھ ایکشن ٹیمز بنا کے، بقرعید ایکشن ٹیمز، GHMC اور پولیس کا جو جوائنٹ ایکشن ٹیمز بنائے ہیں۔ تاریخی مکہ مسجد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ امام و خطیب محمد لطیف احمد نے فضائل عید الاضحیٰ بیان کیے اور نماز عید کی امامت کی۔ خطیب مکہ مسجد نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو تقوی کو اپنانے کی تلقین کی۔ اس موقع پر رقت انگیز دعا کی گئی۔ عیدگاہ مادنا پیٹ میں نماز عید خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ خطیب عیدگاہ نے اپنے خطبے میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔
नमाज ईद के बाद मुसलमानों ने बगलगीर होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह राजेंद्र नगर में नमाज ईद के मौके पर गैर मामूली इज्तिमा देखा गया। मुसलमानों ने ईद के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह रेडिल्स में भी नमाज ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने ईदगाह में नमाज ईद अदा करते हुए गले मिलकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। हकीमपेट दरगाह से मुतसिल ईदगाह में मुसलमानों ने खुशी और खुजू के साथ नमाज ईद अदा की। रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने अवाम से बगलगीर होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह सात गुंबद में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। इमाम और खतीब ने फजाइल ईद उल अजहा बयान किए और ईद के मौके पर गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखने की तलकीन की। ईदगाह गुजाले शाह सैदाबाद में भी नमाज ईद के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। हजारों मुसलमानों ने खुशी खुजू के साथ नमाज ईद अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मौजूद थे और उन्होंने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। हैदराबाद और मुसलमानान हैदराबाद और मुसलमानान हिंद को मेरी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड, ईदगाह हजरत अंबर शाह बाबा अंबरपेट, मस्जिद चौक, शाही मस्जिद बाग आमा, ईदगाह चिलकलगोड़ा, ईदगाह सनत नगर, ईदगाह पहाड़ी शरीफ, ईदगाह फसलसर के अलावा अजीमतर हैदराबाद और शहर की तमाम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के मौके पर कसीर इज्तिमात देखे गए। शहर में पुलिस की तरफ से ईद उल अजहा के पेश नज़र गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। मुल्क भर में ईद उल अजहा इंतहाई खुशी खुजू के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। दिल्ली की दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दिया। महाराष्ट्र के मुंबई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और दूसरी रियासतों में भी ईद उल अजहा मनाई जा रही है। आलम इस्लाम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। मरकजी काबीना में इतवार को होने वाली तोसी और रद्दोबदल की खबरों के बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की खामगाह पर जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पहले ही 6 वज़रा से इस्तीफे जाने को लेकर मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। यह भी इत्तला मिली है कि और मरकजी वजीर कलराज मिश्रा ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मिश्रा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा पेश किया। ताहम उन्होंने कहा कि उनका मुजाहरा अच्छा था, लेकिन पार्टी क़ियादत के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि अरुण जेटली, जो इस वक्त दिफा और फाइनेंस का कलमदान रखते हैं, उन्हें एक कलमदान ही दिया जाएगा। रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु को दूसरा कलमदान दिया जा सकता है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को जायज़ जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नए वज़रा में महेश गिरी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी और दूसरों के नाम लिए जा रहे हैं। जेडीयू के 2 अरकान को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान है। मुत्तहदा आंध्रा के साबिक वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी को उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस की तरफ से खिरात पेश किया गया। कांग्रेसी कायदीन ने पंजागुट्टे के पास वाक़े वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल डाले। गांधी भवन में भी तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से वाईएसआर की बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला की खिदमात को खिरात पेश किया गया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि वाईएसआर के मकासद को पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस और दिफा अरुण जेटली से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में वज़ारत दिफा की अराजी की फराहमी की दरख्वास्त की, जिसे मरकज़ ने इत्तेफाक किया है। वज़ीर आला ने मेडचल करीमनगर हाईवे पर अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दिफा अरुण जेटली ने मज़कूरा अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने की मुताल्लिक़ा महकमे को हिदायत दी है। यह भी पता चला है कि बाज़ अहम उमूर पर और जीएसटी की कमी पर भी वज़ीर आला ने अरुण जेटली को तवज्जो दिलाई। इस पर वज़ीर फाइनेंस ने तयक़ुन दिया कि हैदराबाद में होने वाले जीएसटी कौंसिल के इजलास में इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया जाएगा। टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के कई कायदीन टीआरएस क़यादत के राब्ते में हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए आला अदालत में जानबूझकर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। टीआरएस लीडर का यह भी कहना था कि अराजी सर्वे पर जहां कांग्रेसी कायदीन वावेला मचा रहे हैं, वहीं अवाम इससे काफ़ी खुश हैं।
तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने दूसरी तरफ ये कहा है कि टीआरएस पार्टी में उनके मखबिर मौजूद हैं, लेकिन मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि आखिर उन मखबिर के नाम क्या हैं तो इससे भट्टी विक्रमार्का ने इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी वजाहत की कि सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के साथ उनके कोई इख्तलाफात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर रियासत के लिए नुकसानदेह बन चुके हैं। अराजी सर्वे के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। जुबली हिल्स में शादीशुदा खातून को हरासा करने वाले एक शख्स की मुकामी अवाम और मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने पिटाई की। खातून ने भी उसकी चप्पल से पिटाई की। तफसीलात के मुताबिक मशरकी गोदावरी का साकिन प्रसन्न कुमार, जो पेशे से गुत्तेदार बताया गया है, इस वक्त पोराबंडे में मुकीम है। गुज़िश्ता 6 महीनों से वो खातून को हरासा कर रहा था। कई बार खातून के रिश्तेदारों ने प्रसन्न कुमार को हरकतों से बाज आ जाने का इंतबा दिया, लेकिन उसकी हरकतें जारी रहीं। इस पर मुकामी अवाम ने उसे पकड़कर पिटाई की। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। पुलिस ने प्रसन्ना को तहवील में लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। दुनिया भर से आए हुज्जाज अकराम मनासिक हज के चौथे दिन तीनों शैतानों अल-सुग़रा, अल-वस्ता और अल-कुबरा को कंकरियां मार रहे हैं। मनासिक हज के चौथे दिन हुज्जाज अकराम पूरा वक्त मिना में गुजारेंगे। इससे पहले हुज्जाज अकराम जुमेरात को वक़ूफ़ अरफात और फिर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद जुमे की सुबह वापस मिना पहुंचे थे। जुमे को अल्लाह के मेहमानों ने बड़े शैतान अल-अक़बा और अल-कुबरा को कंकरियां मारी थी और कुर्बानी देकर अपना सर मुनवाया था और अहराम खोल दिया था। बाद में हुज्जाज अकराम ने हरम मक्की पहुंचकर तवाफ़ ज़ियारा किया और रात गुजारने के बाद मीना लौट गए। मनासिक हज अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। इस वक्त हाजी अयाम तशरीक़ के तहत बड़े, छोटे और दरमियाने शैतान को साथ साथ कंकरियां मारते हैं। सऊदी अरब के महकमे हज ने बताया कि साल 23,52,122 फर्जंदान तौहीन ने हज की सादत हासिल की है। 17,52,122 हाजी दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। अंदरून मुल्क के 6,01,08 हुज्जाज ने भी हज की सादत हासिल की है। 9 ज़िलहज्जा को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया गया था। उसके बाद हुज्जाज अकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हुए थे। सऊदी हुकूमत की तरफ से हज के मौके पर गैर मामूली इंतज़ामात किए गए थे। याकुतपुर के चंद्रानगर इलाके में ट्रांसफार्मर में धमाके की वजह से सनसनी देखी गई। बताया गया कि हफ्ते की दोपहर अचानक ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ और आग लग गई। इस वाक़े की वजह से एक मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि 2 गाड़ियां और एक ऑटो भी जलकर खाकिस्तार हो गए। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे बरक़ी की लापरवाही की वजह से वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए और बरक़ी ट्रांसफार्मर को यहां से हटाना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में ईद उल अज़हा खुशी और खुजू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं। ईद उल अज़हा ईसार और कुर्बानी की अजीम मिसाल। इस्लामी तालीमात पर अमल करने और तक़वा अख्तियार करने मुसलमानों को उलमा और आइमा की तलक़ीन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का जोश व खरोश। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए फरीज़ कुर्बानी अदा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में अरुण जेटली से हुई मुलाकात। जीएसटी के टैक्सेस में कमी के बारे में हुआ तबादला ख्याल। मरकजी काबीना में इतवार को तौसी। सदर बीजेपी अमित शाह की क़यामगाह पर जबरदस्त सरगर्मियां। अपोजिशन ने काबीना की तब्दीली पर उठाए सवाल। और मनासिक हज के चौथे रोज हुज्जाज अकराम मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही हैं। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।